Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and dear students, this is lecture number 6 on definite integral for class 12th RBSc book. Okay, so guys, in the previous video we have discussed some of the question from exercise 10.2. Now in this video we will discuss the other questions from the same exercise 10.2. Okay, so let's start the video. So guys, in question number 16, 0 to pi by 4 dx upon 4 sin square x plus 5 cos square x, इसका हमसे वो इंटीग्रल पूछ रहा है. ओके, तो क्या आपको ये कहीं नजर आया? ऐसा क्वेश्चन क्या हमने कहीं पहले देखा था? बोलिए. यस, वी हैव डिस्कस्ड द सेम क्वेश्चंस इन द एग्जाम्पल्स. ओके, सो वहां मैंने क्या बताया था आपको कि नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स है. सो वी आर गोइंग टू मेक tan square x in the denominator. Okay, and for that what will I do? I will take cos square x common. I will take cos square x common from the denominator. So let's say this is I. So I will be 0 to pi by 4 dx upon, and we are taking cos square x common. So this will be 4 times sin square x upon cos square x plus 5. Okay guys, now next, so it will be 0 to pi by 4 1 upon cos square हमारा बन गया sec square x into dx divided by 4 times, and this will be tan square x प्लस का 5, tan स्क्वायर एक्स प्लस का 5. ओके, नेक्स्ट, अब तो सबको नजर आ ही रहा होगा कि दिस इज 0 से पाई बाय 4 sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 tan x का होल स्क्वायर, 2 tan x का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर. एम आई राइट? नाउ ये किसकी शेप ले रहा है हमारा? हम क्या करने वाले यहां पे? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम यहां पर tan x को t पुट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा sec स्क्वायर x dx मेरा dt बन जाएगा. आर यू गेटिंग इट? यस. जब मैंने tan x को t पुट किया, सो गाइज दिस होल विल बी sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और यू कैन ऑल्सो पुट 2 tan x को t, सो दिस विल बी दिस. नाउ गाइज sec स्क्वायर x dx हमारा बन गया dt बाय 2. ओके डियर, नेक्स्ट. सो गाइज अब आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी. सो व्हेन मैं x को यहां पे लोअर लिमिट पुट करूंगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन वी विल गेट t इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 4, व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 4 देन वी विल गेट t इक्वल्स टू 2. एम आई राइट? बिकॉज 10 पाई बाय 4 इज 1 एंड 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया. So guys, 0 से 2 is the new limits, and न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट बन चुका है dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस रूट ओवर 5 का स्क्वायर. ओके, नाउ गाइज दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज 1 upon a, 1 upon a, that means a is here root 5, tan inverse x upon a, x upon a. So here it is t upon a is root of 5. Okay, and ये आपका हाफ बाहर भी तो है. Am I right? So this is the limit from 0 to 2. Okay guys, now 1 upon 2 root 5. Now put the upper limit here. So it will be tan inverse 2 upon root 5, एंड लोअर लिमिट पुट करने पे ये आपका tan इनवर्स 0 बन रहा है, एंड tan इनवर्स 0 इज
1. So this whole will be 0. Okay guys, tan inverse 0 is 0. So this is the answer. Okay guys, so we will get the integral equals to 1 upon 2 root 5 tan inverse 2 by root 5. Okay guys, सबको समझ आ गया? Now copy it. Pause the video to note it down. Okay, so everything is clear now. Next, move on to the next question. So let's move on to the next question, number 17. Okay guys, question number 17. We will finish this exercise today. This is already your sixth lecture, and we are taking lot of time in one exercise. So let's just finish this today. So 0 से pi by 2 we have sin x upon, guys, sin x plus cos of x into dx. Am I right? Yes sir. Next, भी कुछ बिछड़ा हुआ याद आया? हाँ, क्या हमने इनडेफिनेट के अंदर इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व किया है? किया तो है. कैसे किया है? आपको वो याद रहना चाहिए. जब आपको याद रहेगा तभी आप यहां पे कर पाएंगे क्वेश्चंस को. ओके, तो जितने भी आप टाइप्स पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के, वो सभी टाइप्स आपको कहीं ना कहीं माइंड के कॉर्नर में याद रखना ही पड़ेगा. ओके, यस. सो हाउ वी हैव done this type of questions? We just multiply and divide by 2. हम लोग multiply और divide करते हैं 2 से. So guys, 2 sin x upon sin x plus cos x into dx, and this will be 0 से pi by 2. Okay, now this 2 sin x can be written as sin x plus sin x upon we have sin x plus cos of x into dx. Okay guys, now what will I do कि मैं डिनोमिनेटर को बनाऊंगा न्यूमरेटर के अंदर. ओके, सो मैं ऐड कर दूंगा cos x से और माइनस कर दूंगा मैं cos x से. ओके गाइज, so that we can have denominator in the numerator. So half of 0 से pi by 2. Okay, now combine these two. So what will we get? Sin x plus cos x upon sin x plus cos x. मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, एंड प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू ये हो गया हमारा, and complete we have dx. Okay guys, now these two will cancel out each other and we will have half of 0 से pi by 2. This will simply be dx. Okay guys, plus now 0 से pi by 2 sin x minus cos x upon we have sin x plus cos x into dx. Okay guys, next, so I is equal to half of, now 0 से pi by 2, यहां पे 1 है, एंड 1 का क्या होता है हमारा? 1 is का x होता है. सो दिस विल बी x 0 से pi by 2. और गाइज इसको मैं एक बार के लिए क्या मान लेता हूं? I1 मान लेता हूं. ओके, बिकॉज मैं यहीं पे पूरा एकदम कंजस्टेड ना करते हुए उस पार्ट को मैं अलग से सोल्व करूंगा. ओके गाइज, यस, सब कुछ क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट. So I will be equals to half of, this will be pi by 2 plus का I1, and this is going to be my result. Okay, but we will have to prove put here I1. हमें यहाँ पर I1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और I1 हमें कहाँ से मिलने वाला है?
कि इस इंटीग्रल को सोल्व करके, सो आई विल सेपरेटली सोल्व आवर I1 विच इज 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन वी हैव साइन एक्स प्लस कोस एक्स. ओके गाइज, कुछ नजर आया? यस. व्हाट? कि सिंपली पुट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू t, देन डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड कर लो इसका, cos x माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt. Okay guys, now take minus common so that you can make the numerator. So sin x minus cos x into dx equals to dt, and dear students, then we will have sin x minus cos x into dx equals to minus का dt. Okay guys? Okay, next. Now change the integral. So 0 से pi by 2, this will be minus of dt upon sin x plus cos x हमारा हो जाएगा t, and this is nothing but log of t. Okay guys, now this minus will come out, minus of log t. Okay, this is log of t. Okay guys, now what is t here? What is t? T is our this sin x plus cos x. Now simply put the limit 0 से pi by 2. So what will we get? Minus of log. तो पहले मैं इसमें अपर लिमिट पुट करता हूं. So सब कुछ आपका 0 हो जाएगा. पाई बाई 2 पुट करने पे ये आपका 1 बना, ये आपका 0, एंड cos 0 इज 1, एंड व्हाट वी गेट log 1 हमारा 0 होता है. उसके बाद मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो साइन 0 आपका 0 हो गया, cos 0 आपका 1 होता है, 0 प्लस 1 आपका 0 हो गया, एंड log ऑफ 1 इज 0. सो वी आर कंप्लीटली गेटिंग I1 इक्वल्स टू 0. ओके गाइज, सो I1 जो है वो मुझे 0 मिल रहा है. नाउ सिंपली पुट I1 हियर एंड वी विल गेट हाफ pi by 2 plus 0, and this will be half into pi by 2, that is pi by 4, and that is the right answer. Okay guys, so I hope आपको clear हो गया होगा. This is your answer number 17. Okay, now let's move on to the next question. Number 18 we have. Question number 18 is very easy question. Okay, let's come bacha party. We have question number 18. We have to find the integral of minus 1 to 1, and we have x into tan inverse x dx. Okay, x into tan inverse x dx. Okay guys, so कुछ समझ आया? Yes. What? कि when we have two functions in the product, then what we apply? We apply IBP, that is integration by part. And you remember ILATE? Yes, ILATE. I know late, but you are late, है ना? Okay, so I for integration, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometry, E for एक्सपोनेंशियल, एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x, सो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द फर्स्ट फंक्शन एंड x विल बी आवर सेकेंड फंक्शन. नाउ अप्लाई द इंटीग्रेशन IBP. Okay, apply the IBP. Okay, so guys, you are going to write here the formula for IBP का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं. आई होप सबको आता होगा फॉर्मूला क्या होता है. सो मैं डायरेक्टली इसका आंसर कर रहा हूं. सो गाइज, वी हैव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एंड द लिमिट इज लाइक दिस. यस, हियर वी हैव माइनस ऑफ होल इंटीग्रल माइनस 1 to 1 and d by dx of
tan इनवर्स x, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं एंड सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, देन पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. सो गाइज दिस विल बी tan इनवर्स x इंटू x का हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, सो -1 से 1. नाउ -1 से 1. So what is the derivative of tan inverse x? This is 1 upon 1 plus x square. Very easy. Now what is the integral of x? This is x square upon 2 into dx. Okay guys, very easy. Yes. Now put the upper limit here. So tan inverse 1 is pi by 4 into 1 by 2 into 1 by 2 minus of lower limit, that means tan inverse -1, and guys tan inverse -1 is minus of pi by 4, okay, into put -1 here, it will be 1 by 2, and this is the solution iska. Okay guys, now let's move on to the next. We have minus here and -1 to 1. Now this 2 can be taken out and we will have x square upon 1 plus x square into dx. So आपने indefinite में क्या पढ़ा है कि जब आपके पास ये डिग्री सेम हो, so always try to make the denominator in the numerator. So what will we have to do here? We will add +1 and -1. हम लोग यहां पर +1 करेंगे और उसमें -1 कर देंगे. ओके गाइज, नेक्स्ट. ओ वैसे यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर. अगर आप चाहे तो आप यहां पे अप्लाई क्या कर सकते हैं. ओ सॉरी, अभी तक आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है ना. यस, सो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. ओके, नाउ दिस इज पाई बाई 8 and this minus plus of pi by 8 guys, and we will have minus of half. Okay, now let's separate these. Okay, so should we separate them? Yes, so let's separate them. So we will have -1 to 1. This will be x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square plus 1 minus of 1 upon 1 plus x square into guys dx. Okay, I hope सब कुछ यहां तक सही चल रहा है. Okay, now this pi by 8 plus pi by 8, it will be pi by 4 plus, sorry, minus, we have here minus of half. Okay guys, now this is 1. Okay, so this is 1, so -1 to 1, 1 minus, and guys this is 1 upon 1 plus x square into dx. Okay, now simplifying the integral. Simplifying the integral, so this will be pi by 4 minus of half. Okay guys, now 1 का क्या हो जाएगा हमारा x minus 1 upon 1 plus x square का हो जाएगा tan inverse x, and the limit is from -1 to 1. Okay guys, now see pi by 4 minus of half. Now put the upper limit here, so this will be 1 minus tan inverse 1 pi by 4. Okay guys, now minus of, we will have -1 here, and it will be minus of tan inverse -1. Okay guys, tan inverse -1, that is going to be minus of pi by 4, minus of pi by 4, and that minus, ये minus हमारा plus का हो चुका है. Okay guys, now pi by 4 minus half, 1 minus pi by 4 plus का 1 and minus का pi by 4. Okay guys, now 1 plus 1 is going to be 2, so pi by 4 half, okay, 2 minus of this, minus pi by 4 minus pi by 4 is going to be 2 times pi by 4. Now simply divide by 2, so we will have pi by 4
माइनस ऑफ 1 एंड दिस माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा हमारा ये पाई बाय 4. सो दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस 1 एंड दैट इज आवर आंसर. ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 18. आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. pi by 2 minus 1. This is question number 18. Okay guys, now next question number 19 देखते हैं. Okay, from this time I will write little bit छोटा छोटा ताकि पूरे बोर्ड पे आपका एक क्वेश्चन आ जाए. So we have 0 to 1 x into sine inverse x upon over the root 1 minus x square into dx. Okay guys, so let's see. So what we are noticing here, sir, this is sine inverse x. So इस sin inverse x को अगर मैं t पुट कर लूँ then I will have 1 upon root 1 minus x square into dx. वो हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना. So let's put. So guys, sin inverse x को मैं t पुट कर रहा हूं तो यहां से 1 up over root of 1 minus x square into dx will be dt. Okay guys, so this whole will become dt. ये जो complete जो है, sorry, this whole will be रंग बिरंगा, है ना, रेड. ओके, दिस होल विल बिकम व्हाट, dt guys. ओके, यस. सो your integral will change from 0 to 1 but the limit will also change and we will have x. so guys यहाँ से हम x को क्या लिख पाएंगे, sin t, है ना. so x को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे sin t. okay guys, and this sine inverse x will be t and dt, but also remember to change the limit. so guys, when x is 0, so I will write here कि when x equals to 0 then t will be equals to sine inverse 0, that is going to be 0, and when x equals to 1 then t is sine inverse 1, that is going to be pi by 2. so this is our new integrand, 0 to pi by 2 sin t dt. okay, this is different, sin t into dt. okay, so here two functions are in the multiply. so what we are going to do, we will simply apply here IBP. okay guys, so this will be the first function and this is going to be the second function. now what we do, first function as it is and the integral of second function, that is sin t, and sin t का हो जाता है आजकल माइनस का cos t. ओके गाइज, सो यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, सबको सब कुछ समझ आ रखा होगा, है ना. यस, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ, गाइज वी विल हैव 0 to pi by 2 and the derivative of first function, that is derivative of t, it will be 1 into derivative of sin t, it is going to be minus of cos t into dt. okay guys, now next simply put the limit here, upper limit. so minus of pi by 2 cos pi by 2, now lower limit minus of, भी तो पूरा जीरो हो गया ना, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, राइट. वाई, जब मैं t को जीरो पुट करूंगा तो पूरा ही आपका जीरो हो जाएगा. नाउ दिस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो जीरो से पाई बाय 2 वी विल हैव cos t इंटू डी टी. ओके गाइज, नाउ दिस होल विल बी जीरो. वाई, बिकॉज cos पाई बाय 2 इज जीरो. ओके, सो पूरा का पूरा हमारा जीरो हो गया. so the integral will be I equals to, we will have to integrate this, so this will be cos t. okay, and cos का होता है हमारा sin t and the limit is from 0 to pi by 2. okay guys, now
put the limits here. Sin pi by 2 minus of sin 0, and that is going to be 1 minus 0, which is 1, and that is our desired answer. Okay, जिसको हम याद कर रहे थे वही हमारा आंसर आ गया. ओके गाइज, yes, so this was your answer of question number 19. Okay, now let's move on to question number 20. Okay guys, next question number 20. देखिए, I equals to 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्या ये वही है? कहाँ का सर? इनडेफिनिट वाला इक्वेशन था आपका, ये एक्स स्क्वायर अपॉन दिस दिस दिस, है ना? तो ये वही क्वेश्चन है, उसी का केवल क्या है ये बड़ा भाई. क्या करना है हमें? लास्ट में हमें केवल यहां पे लिमिट पुट कर देनी है. सो बच्चों, हमने कैसे सोल्व किया था? बोलिए, कैसे सोल्व किया था हम लोगों ने? कि हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे. ओके गाइज, सो जब मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लूंगा, सो देन क्या बनेगा हमारा कि सर जो आपका इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा सर टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर. ओके, व्हाट नेक्स्ट? सर मुझे कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन की फील आ रही है. आई ना पार्शियल फ्रैक्शन की फील? कैसे? कि व्हेन द डिनोमिनेटर जो हो वो हमारे किस में हो? लीनियर फैक्टर्स में. सो हम वहां पर यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को. सो गाइज, टी अपॉन दिस इंटू दिस प्लस दिस, इसको मैं दिस लिख दूंगा ए अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर प्लस गाइज बी अपॉन टी प्लस बी स्क्वायर. वाई 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 कि जब आपके फैक्टर्स क्या हो? लीनियर फैक्टर्स हो. सो ऊपर मेरा कांस्टेंट आता है न्यूमरेटर के अंदर. नाउ सिंप्लीफाई दिस टू. सो गाइज, जब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा, है ना, सो यू विल हैव टी दिस. अजी बोलने का भी मन नहीं करता इसमें, तो एलसीएम लेना थोड़ी सिखाऊंगा मैं अब आपको. मैं सिखाऊंगा ना एलसीएम तो. यस, दिस इंटू दिस. ओके, दिस इंटू दिस दिस दिस, और आपका ये आ गया दिस. ओके गाइज, नाउ दिस टू विल कैंसल आउट. Then we will have t equals to a into t plus b square guys, plus b into t plus a square. Okay guys, now मुझे चाहिए a और b का वैल्यू. सो मुझे a का वैल्यू कब मिलेगा? जब ये जो है वो मेरा जीरो बन जाए. नाउ ये आपका जीरो कहाँ होगा? जब t मेरा माइनस ऑफ a स्क्वायर हो जाए. सो पुट t equals to minus a square guys, then we will have minus a square equals to minus का a square plus b square. ये तो आपका चला जाएगा कहाँ पे? जन्नत, है ना? क्या उसको जन्नत नसीब होगी? जरूर होगी. वाई? बिकॉज उन्होंने हमारी हेल्प की है ना? वो आपका जीरो हो गया. ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सो यहां से हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया? कि सर a का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस का a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर. ओके गाइज, नेक्स्ट कि सर अब हमें चाहिए b का वैल्यू. सो b हमें कब मिलेगा? जब ये मेरा जीरो हो जाए. कौन से वाला? मेरे पास रेड भी है, ये वाला आपका जीरो हो जाए. और ये जीरो कब होगा? जब मेरा t माइनस बी स्क्वायर है. सो पुट t इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर, देन इट विल बी गाइज माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. फिर से जन्नत में जाएगा ये b इंटू
माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गाइज. ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी विल गेट b इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो दिस माइनस को मैं नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो गाइज वी विल हैव बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन वी विल हैव दिस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर गाइज. ओके, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. ओके, नेक्स्ट. सो गाइज जो आपका इंटीग्रल है जीरो से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ भी dx तो साथ में रहेगा ही, अकेला कहीं नहीं जाता. जीरो से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर. ओके, सो गाइज ये हमारा क्या बन चुका है, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस. सो दिस विल बी व्हाट, सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो a इज माइनस का a स्क्वायर अपॉन वी विल हैव गाइज b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर इंटू टी प्लस ए स्क्वायर. तो बस टी का भी खेल खत्म, इसको भी विदाई करते हैं अब. सो टी हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गाइज. ओके, नाउ प्लस में वी विल हैव दिस बी अपॉन दिस. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज दिस. सो गाइज इसके आगे जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं बी स्क्वायर अपॉन वी विल हैव बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा भी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ भी dx तो आपका चलेगा ही, dx अकेला कहीं नहीं जाता, इसको डर लगता है. ओके, सो ये हमारा आ चुका है. नाउ फ्रॉम बोथ द इक्वेशन फ्रॉम बोथ यू कैन टेक, दोनों से हमारा वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, सो वी कैन टेक दैट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल. ओके, फास्ट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा. सो गाइज क्या बचेगा हमारे पास यहां पर, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गाइज. ओके, एंड यहां क्या रह जाएगा हमारा, वही बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स. सर ये तो मेरा दोस्त है, जाना पहचाना नजर आ रहा है क्या, वन अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टेन इनवर्स एक्स इंटू वन अपॉन ए. चलिए जाना पहचाना है तो उसका हम लोग फायदा उठाते हैं. उठाएं फायदा. यस, सो वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस का ए स्क्वायर गाइज एंड टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड मेरा वन अपॉन ए भी होता है, सो दिस वन अपॉन ए, एंड हियर इट विल बी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय बी. बार बार चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए गाइज. सो ये हमारा बन गया. क्लियर टू एवरीवन? यस. नाउ वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर पढ़ाओ आप. दिस क्या बन गया अभी, ये माइनस का ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी एंड जीरो से इंफिनिटी. अब तो सर आंखें चमक गई, लिमिट पुट कर दीजिए. सो जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का टेन इनवर्स एंड इन्फिनिटी अपॉन ए, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी. ओके, देन प्लस का बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस गाइज वी विल हैव, देखिए जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो, तो जीरो अपॉन ए आपका जीरो एंड टेन इनवर्स जीरो इज जीरो. यहां भी आपका टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा. सो पूरा आगे का तो अपना माइनस ही हो गया. सो माइनस से हमें क्या लेना देना है ना, माइनस से हमें क्या लेना देना. ओके गाइज, यस सर, वी आर एब्सोल्युटली विथ यू. जैसा आप पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे.
1/b² minus a², tan inverse infinity is pi/2. So minus a into pi/2, and here we will have plus b into pi/2. pi/2 हमारा कॉमन आ जाएगा, b² माइनस a², ये हो जाएगा, यहां से b माइनस a रह जाएगा. ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट pi/2. सर इसको आप क्यों ना लिख दो b माइनस a इंटू बी प्लस ए, एंड ऊपर मेरा क्या है b माइनस a, ये आपस में कैंसिल, तो क्या बचा pi/2 इंटू a प्लस बी, और वही हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर है. ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 20.